श्रोताओं, वादे के मुताबिक मैंने आपसे कहा है कि आसपास ही नहीं बल्कि पूरे रीजन में भी अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति विशेष मिलता है जिसको गुजारिश करके हम अपने स्टूडियो में ला सकते हैं और जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में महारत रखते हैं, तो साथियों, आज मैंने एक ऐसे व्यक्तित्व को खोजा है जिनका स्टूडियो में आना हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। साथियों, मिस्टर सुनील राजदान, जो कि मेजर जनरल की पोस्ट से रिटायर हुए हैं, and he is a very decorated officer and has so many things to tell us, and I take it my privilege to have a talk with him. And for my audience, I would like to touch various aspects from this such a decorated officer. श्रोताओं, मिस्टर सुनील ना केवल एक डेकोरेटेड ऑफिसर हैं बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं से आपने ऐसा अनुभव लिया है कि आज इनसे बात करके हम अपने आप में एनरिच्ड महसूस करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है कि आप हमारे यहाँ आए और अपने व्यस्त समय में से समय निकाला और हमारे श्रोताओं से बातचीत करने के लिए आप तत्पर रहे। पहले तो मेरी ओर से श्रोताओं को नमन, एंड आई सैल्यूट ऑल सिटीजन्स and the listeners of this August channel, which is trying to bring out the hidden, unknown soldiers of this pious land of Haryana. Yes, definitely. Because, sir, as I have already mentioned to you, in our neighbor we have Major General Bakshi, GD Bakshi, and then even Major General Avasthi is also putting up here, and we have the privilege that both of them have visited us on a number of occasions. Very nice. Yes. Sir, I would like to just know from you, when did you join the forces and on which cadre you joined? I started dreaming about army when I was at Temple in 1972, post Indo-Pakistan war, when East Pakistan became Bangladesh. Okay. There was a parachute regiment which was located in a place called Mathura in UP. Yes. So their wrestlers and sports person used to come to the temple because it was on the banks of river Yamuna. Okay. And exercise. Right. So it is that time I dreamt about joining the army. Right. I was studying in class 12th at that time. And after my post-graduation in 1975, I decided to join army as an officer. Okay. And sir, what I could see that at that stage to the retirement of at the rank of Major General of your command, I think number of ladders have been crossed. Would you please spell out those different ranks which you have to
cross before you reach to this level? Yes, sir. As a second, I was commissioned in 19th March 1977 as a second lieutenant. Okay. Being physically very tough, I was number 2 in the academy as far as obstacle training and other physical fitnesses were concerned. So I was offered parachute regiment, Okay. from which the special forces became part. So I came to 7 para. During this phase, in the unit I learned Okay. that the river of humanity flows from ex eternity to the eternity. Okay. Therefore, while doing the operation, it is necessary to be humane, Okay. and there is a requirement of precision, avoiding collateral damages, Okay. meticulous planning, preparation. Okay. So that part I learned as a second lieutenant. Okay. During this phase, I went through commando course. Then as a lieutenant, means intervening period as a second lieutenant and you're considered as a lieutenant, I scaled a peak called Kinnar Kailash. It was the range of Kinnar Kailash which I scaled. Our other team went to the Kinnar Kailash. I went to second highest peak in that area. Okay. It involved 7,000 feet of technical climb. Right. So I was part of Colonel K.I. Kumar, Kiranendra Kumar, famous mountaineers. Yeah. Yeah. Without any mountaineering experience, just out of sheer fitness, I climbed a peak, and Right. there is a book published, Expedition Kinnar Kailash, Okay. in which my photograph is also there. So that was the part of being a lieutenant, and then you are doing a signal training, Right. small arms training, specialist weapon training, making improvised devices for your, what we call in Hindi, jugaad, Okay. for your weapon systems. So that part was lieutenant part. Okay. Okay. And on the side track, I also had interest in what you called spirituality. Okay. Okay. तो मैं ये जानना चाहता था कि मैं कौन हूँ Right. और मैं क्यों हूँ. Right. तो ये मेरे लिए खोज थी कि एक तो मैंने सीखा था कि राष्ट्र क्या है अपनी यूनिट में, और हम लोग राष्ट्र धर्म का पालन कैसे करते हैं, और जब राष्ट्र पर संकट आता है तो हम लोग इसको कहते थे राष्ट्र यज्ञ. Okay. तो मेरा सबसे पहला ऑपरेशन था अलीगढ़ में, इंटरनल सिक्योरिटी में, Okay. जहाँ पर कि 2 दंगाग्रस्त क्षेत्रों का मैं इंचार्ज था एज ए लेफ्टिनेंट. Right. तो मैं दोनों समुदायों से मिला. मैंने कहा देखो भाई, आपके जो भी गिले शिकवे हैं आपस में, उनको आप Settle. आराम से बैठ के तय कर लो, मगर इधर अगर मार काट मचाई तो फिर आपके साथ दूसरा व्यवहार हो. ठीक. और उन लोगों ने हमारे सैनिकों का मेरा व्यवहार देखा. हम दोनों समुदायों के यहाँ जाते थे, कोई त्यौहार है तो उनके यहाँ एक समुदाय के पास चले गए और
दूसरे का इनवाइट मिलता था, आमंत्रण मिलता था, तो उसके निमंत्रण में चले गए। तो इस तरह से आपस में हो गया, और फिर हमको ये तसल्ली दी गई कि साहब ये कोतवाली थाना, कोतवाली क्षेत्र और हाथीपुल के क्षेत्र में 2 क्षेत्र थे, कोई दंगा नहीं होगा, इसकी हमारी गारंटी है। ओके। और मुझे तब यकीन आया कि जबकि एक बुजुर्ग शाम को पान की दुकान के पास में बैठा हुआ था, तो उसने आके खोला, साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बोला भाई मैंने क्या करा आपका? तो उन्होंने बताया कि आपने मेरे लड़के को घर बिठा दिया, नहीं तो आवारागर्दी घूम करता था, अब कम से कम किताबों को तो पढ़ता है। अच्छा, ठीक है। तो आपका सर ज़्यादातर जो सर्विसेज के दौरान में इंटरेक्शन रहा है वो टेररिस्ट ग्रुप के साथ रहा है, या बॉर्डर पर भी कभी आपको इंटरेक्शन का मौका मिला? जी, मैं अपने उसके दौरान, कार्यकाल के दौरान जी। मैं ज़्यादातर तो टेररिस्ट के बरखिलाफ़ी काम करा मैंने, मगर समाज के पुनरुत्थान के लिए मैंने बहुत काम करा। राइट, राइट, राइट। मिसाल के तौर पे मैं एज ए मेजर मैं मणिपुर में था। ओके। और मेरे नीचे 105 गांव आते थे ओके। मेरे जुरिस्डिक्शन में, और तकरीबन 550 मील की लंबाई पर मैं पूरे इलाके को देखता था। और मुझको खुदावंद करीम भगवान की कृपा से, जो भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर, मेरी मेमोरी बहुत तेज थी, मुझको पूरा मैप जो था वो पूरा याद रहता था। ओके। एंड दैट हेल्प मी टू कॉन्टैक्ट विद various sects of Christianity, Maites, and there also I try to find out why people do fight. Okay. What And is then the basic reason? Why do people fight? And I came across a book written by Alvin Toffler, Okay. Power Struggle. Okay. So in Power Struggle they say wine, woman and wealth. Yes. There are 3 elements for, Right. basically for causes for Yes. fire. Yes. And everyone is trying to compete for 3 elements which I just spoke about, Yeah. and to gain them. Yes. And some people think just because of violence, if they are mastering the violence, they can easily gain wealth, and they can easily gain Power the as well. thing. These are the 3 things. Yeah. That is their main core. Now in this power struggle, now the emerging trend is the religion. The religion, which is, I do not want to rather comment on this being a soldier, because I'm a political person. Religion should be a private thing. आप जिसमें विश्वास रखते हैं उसको फॉलो करिए। Yes. Yes. जैसे आकाशम पतितं तोयम यदा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। You follow any path, any religion, any sect, ultimately it leads to Lord, Yes. the Almighty. Yeah. Yeah. There's a very beautiful book written by Sir John Woodruff and published by his disciple after his demise, The Garland of Letters. Okay. That explains Lord Shiva. Okay. We'll come to that later. Right. Right.
Sir, I came to know that you have been decorated by various such awards which are worth remembering any time to come. Would you please mention those? This is past. But anyway, This is past and gone past. However, on your insistence, sir, Yeah, I yeah. will just mention. I've got Yeah. 2 presidential awards. Very good. One is the Kirti Chakra, Okay. that is equivalent to Peace Mahavir Chakra wartime. That was for rescuing 14 girls and ladies from militants Okay. who were sexually exploiting her. Acha. Then came the Vishishta Seva Medal in 2009. The first one was on 1994. In 1994, 1994 में मुझे पहला कीर्ति चक्र का अवार्ड पुरस्कार प्राप्त हुआ था जी. डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी से, Okay. जो भारत के उस समय के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हाँ. थे। दूसरा वाला श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी जब जी. भारत के प्रधानमंत्री थी 2009 में, मुझे विशिष्ट सेवा मेडल के एजाज से नवाजा गया था क्योंकि मैंने कोई ऐसा थिंक टैंक खड़ा करा था जो कि आज भी जीवित है और आज भी कार्यरत है। ओके. ओके. उसके अलावा मुझको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के 2 प्रशंसा पत्र हैं। उनमें से एक का तो बयान मैंने आपको कर दिया कि किन्नर कैलाश के लिए। जी जी. दूसरा था मणिपुर में जो मैंने सेवा करी थी जनमानस की और लोगों को ड्रग एडिक्शन से छुड़ाया था। मतलब काफ़ी बच्चों को ड्रग एडिक्शन से छुड़ाया था और फिजिकली फिट कराया था। जो घर इस विपदा से टूट गए थे उन घरों को जोड़ा, उसके लिए मिला था। ओके. ओके. इसके अलावा तीसरा अवार्ड जो मिला था मुझको वो दिल्ली में एनक्रोचमेंट जो होती है, इलीगली लोग ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं, राइट, उसको छुड़वाने के लिए। ओके. और चौथा और पांचवा अवार्ड जो है मुझको डीआरडीओ में मिला था सराहनीय कार्य की प्रशंसा के लिए। ओके. ओके. उसके अलावा छोटे मोटे अवार्ड तो मिलते ही रहते, छोटे मोटे क्या, वो मेरे लिए बड़ी बात है। एक है ललितादित्य शौर्य पुरस्कार। वो एक कश्मीर में एक बच्ची सिंध नदी में सर्दी के उसमें चली गई थी, तो उसको मैं बाहर निकाल के लाया था। ओके. जमी हुई उसमें से सिंध नदी में और जीवित करा था। तो वहाँ पर हेनले गुम्फा है, मोनास्ट्री है हेनले की। तो उन्होंने उनके जो लामा थे उन्होंने दिए। ओके. ओके. सो I think your life has been so adventurous that it has been duly recognized as well. As far as these awards, they tell a very high story about your career. ये Sir, सर हाँ, please. बात दूसरी है। बात ये है, हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहाप। Yes, yes, yes. ये विधाता के हाथ में है। Yes, मेरा काम है कर्म करना, exactly. और फिर देश काल और परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि लोग उसका जो हैं सबब बन जाते हैं और आपको उसके लिए डेफिनेटली कीर्ति भी मिलती है, यश भी मिलता है और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। सर, नाउ I would like that since when we were talking in my office, you mentioned to me that, and even here you mentioned that one of the motto for you was to search the real meaning of life.
what exactly, what for we came here, what remains the purpose. So, what had been your studies and your experience out of this? सर मैं बहुत ही संक्षिप्त में इसको, क्योंकि ये Yes. बृहद विषय है हाँ हाँ और इसके लिए काफी समय चाहिए, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। जी जी एक रूपम बहुरूप, एक बहुरूपम एक रूपे। जिस तरह से एक मिट्टी के लोथड़े से अनेक प्रकार के बर्तन, अनेक प्रकार की चीजें बनती हैं, यस किंतु उनके अंदर होती क्या है? मिट्टी ही होती है। या इसी तरह से हम लोगों के अंदर, चाहे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, विशेष वर्ग के कुछ भी हो, जो भी ह्यूमन बीइंग है और जो चर है और जो अचर है, सभी में भगवान का अंश है। ठीक। और भगवान क्या है? वो परम शक्ति है जो कि इस जगत को चला रही। या मैं तकरीबन 6 साल का था जब मेरी माताजी मुझको शमशान घाट ले गई थी। उनकी मित्र का देहांत हो गया था। तो लौटते में उस मंदिर पे आके हम रुके थे। ओके। चामुंडा देवी का मंदिर है Yes. मथुरा में, गोल्फ ग्राउंड के अंदर। ओके। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, तो उसके अंदर जाकर रुके थे। तो वहाँ उन्होंने हमारी माताजी ने हमें इसका ज्ञान दिया था कि शरीर के ऊपर जो चमड़ी दिख रही है और जो हड्डियां हैं, ये मात्र आवरण हैं। ठीक। जिस तरह से कि आप अपने शरीर पर कपड़े पहनते हैं, ठीक इसी प्रकार से जो आपकी आत्मा है, इसके वो शरीर ढकता है। ठीक। आपका लिंग कुछ भी हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसक लिंग हो, कुछ भी हो, मगर आवरण है वो। राइट। अंदर जो है इसके दिव्य अंश, नाभिकीय कण इसके अंदर विद्यमान है। तभी हम लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। यस। मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म का मतलब दूसरा वाला नहीं है, छलावा नहीं है। ब्रह्म का मतलब है ज्ञान में हूँ, मेरे अंदर ज्ञान है और मेरे अंदर पावर है। और इसीलिए वेदों में जो पहली चीज कही गई है ऋग्वेद में, वो ये है, ओम खम ब्रह्म अयम आत्मन ब्रह्म एवं तत्त्वमसि। मैं तेरा ही तत्व हूँ। तो जब मैं किसी से मिलता था, चाहे आर्थिक रूप से सक्षम हो, अक्षम हो, मैं नर में नारायण देखा करता था। ओके। तो ये भाव मेरे अंदर बचपन से व्याप्त था। और इसी भाव की वजह से मैं उन 14 महिलाओं को, उन 14 बच्चियों को, लड़कियों को छुड़ाने चला गया। मैंने ये सोचा कि माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, ये भी तो जीवात्मा है। ठीक। इनको छुड़ाना क्या मेरा दायित्व नहीं है? अगर मैं सक्षम हूँ तो इसकी विवेचना करने के उपरांत then I went for the operation and it is already on Google. I need not spell out. और सर, हम इस पर भी बात कर रहे थे कि ये जो शास्त्रों का अध्ययन किया गया और जीवन के सही अर्थों को जो खोजने का प्रयास किया गया, तो साइमल्टेनियसली ये चल रहा था। उधर आपका करियर था, इधर ये भी आपका अध्ययन के विषय थे। हाँ,
कोई भी लड़की आज तक, मतलब आज तक, मैं अब 70 साल का हो गया हूँ, कोई भी महिला ये नहीं कह सकती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड था। ओके, ठीक है, जैसा मैं हूँ वैसी वो है। उसके अपने, देखिए, भौतिक शरीर है तो भौतिक विचार आते ही रहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सर, आपकी बातचीत से ये बात समझ में आती है कि जहाँ आप एक तरफ अपने कैरियर के प्रति सजग थे, वहाँ दूसरी तरफ आप अपने अध्यात्म को लेकर भी उसी तरीके से जागरूक और सजग प्राणी थे, और उसी का आप जो संयम ढंग से दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहे। जी। अब मिसाल के तौर पे हरियाणा ले लीजिए। जी। ये भारत की ग्रेनरी, अन्न का भंडार मानी जाती है। यस। स्पोर्ट्स की नर्सरी मानी जाती है। ठीक। मगर है क्या? हरियाणा। हाँ। और पहले अनडिवाइडेड पंजाब था। यस। जहां तक मेरी जानकारी है। हाँ, हाँ। कैरियर की फाउंडेशन में अध्यात्म होना चाहिए। यस। तभी आप अपना निर्णय सही ढंग से और चेतन मन से ले सकते हैं। यस, यस। अगर अध्यात्म नहीं है और छल और कपट है तो फिर ज़्यादा दूर तक चलता नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर, मैं थोड़ी बहुत शायरी करता हूँ, और इरशाद। आप वाली बात को इस तरह से कहता हूँ कि जागने से यहाँ बोध मिलता है, जागने से जी। यहाँ बोध मिलता है, वरना खुद से कहाँ योग मिलता है। एक लंबी नींद है जो बनी रहती है, और अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है। वाह वाह। तो बात ये है, जो बात आप कह रहे हैं, मैं बड़े अच्छे से फोर्स ही कर पा रहा हूँ कि आपका एक तरफ लक्ष्य था, एक तरफ जो भीतरी तत्व है, जो कि अनंत काल से इस मनुष्य को जानने का हमेशा आकांक्षा रही है, उसके बारे में भी आपका साथ साथ अध्ययन चल रहा था। और सर, किन किन शास्त्रों को पढ़ने का आपको अवसर मिला? मैंने कोशिश करी है कि महाभारत, उसी में गीता तो आ ही गई। गीता उसके अंदर आ गई है। जी। और रामायण। जी। और छंदोग्य उपनिषद। ओके। विशिष्ट योग। ओके। तथा अन्य किताबें हैं जो कि मैं सबको तो बयान करना नहीं चाहता। गूढ़ अध्यात्म का जिनमें पता लगता है, लगभग वो सभी पुस्तकों वो का। सारी पढ़ी हैं। हाँ, आपने चारों वेद पढ़े हुए हैं। हाँ। तो मैं एक लंबी बीमारी के अंतराल उठा हूँ, और आज आपने मुझे मजबूर करा है कि मैं इधर आऊँ। सर, हमारा सौभाग्य है। मैं सिर्फ अंतिम एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। सर, आफ्टर रीडिंग ऑल दी स्क्रिप्चर्स, प्लस साइड बाय साइड fighting in your own career, and going to such heights with such decorated awards, what do you feel is the basic strength within the man which takes him till the end and he remains motivated? ये एक छोटा सा दृष्टांत है जिसमें लोग कहते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद चांदनी है, और एक लंबी गुफा के एंड में आपको उजाला दिखेगा। यस। मैंने बहुत पहले अपने एक इंटरेक्शन में बोला था, भाई उजाला और चांदनी तो दूर है,
तुम्हारे पास जो टॉर्च है, जो अंदर है, Yes. उसको क्यों नहीं स्विच ऑन करते हो चलते? एग्जैक्टली। तो मेरे जीवन में इस तरह के अंधेरे बहुत आए जब मुझे विकलांग, लड़ाई की वजह से विकलांग मैं हो गया था, और मेरी आंतें वातें सब निकल आई थी, और उस समय गृहस्थी बहुत छोटी थी, और 2 बच्चे, 2 लड़के थे और एक धर्मपत्नी थी जो शंकराचार्य फैमिली की थी। तो मैं ये सोचता था कि इनका लालन पालन कैसे हो। ओके। ये मेरे सामने बहुत बड़ा था। तो मेरा सौभाग्य था कि मैंने इस ऑपरेशन से पहले किताब पढ़ी थी डॉक्टर पीटर सेंगे की सिस्टमिक थिंकिंग। ओके। ये मैं तो रिकमेंड करूँगा हर एक को सिस्टमिक थिंकिंग पढ़ने के लिए। ये विकल्पों के प्रति आदमी को जागरूक करती है। राइट। ठीक है, आपकी शारीरिक क्षमता जो है वो कम पड़ गई है, आप, मगर मानसिक क्षमता तो है। यस। और मानसिक क्षमता जो है आदमी की या कोई भी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता को बढ़ा या घटा सकता है। ठीक है। तो मैंने फिर फील्ड वर्क की जगह स्टाफ वर्क पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू करा, जिसमें फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट हैं और कुछ पेपर लिखे जो गोपनीय श्रेणी में आते हैं, उनको सरकार ने बहुत सराहा और मुझे बुला के हाईएस्ट लेवल पे मुझे प्रशंसा करी। जी तो जी जी। मैं तो सर आपकी सारी बात सुन के इस ढंग से इस बात को कंक्लूड करना चाहूँगा कि बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है, बर्फीली हवाओं का हर झोंका सर्द होता है, ठोकर खा के तो गिरी जाते हैं सभी, जो उठ खड़ा हो बस वही मर्द होता है, बस वही मर्द होता है। जी, तभी ये कहते हैं, यस, होती है सुर्ख रूह ठोकरें खाने के बाद, यस, है ना भी रंग लाती है पत्थर पर पिस जाने से। दूसरा कतील शिफाई ने लिखा है। जी जी, अगर टाइम हो तो बोल। हाँ, बोलिए सर। हसत सुए नाकाम से जल जाते हैं, हाँ, हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। जब भी जुड़ता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग तेरे नाम से जल जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बात ये है राजदान साहब, आपकी जिंदा दिली आज भी हर ढंग से बोल रही है। तो कहते हैं कि गिरते तो वो हैं जो शहसवार होते हैं, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में यस, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल। एग्जैक्टली। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमारे श्रोताओं से जो हैं वो साझे किए। हम तहे दिल से श्रोताओं के बाबत भी और अपने बाबत, हमारे स्टाफ के बाबत हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका, आपके जितने भी यहाँ एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका और श्रोताओं का मूल रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सुना। मैं वैसे कम बोलता हूँ, मगर आज इतना बोल गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। धन्यवाद। धन्यवाद।